Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. You all know that we are on chapter 28 and today we are going to start a new topic. In the last video we have studied about the efforts made by government for gender equality and improvement of women, and in this topic we have studied about the four most important things, that is first one, women were given equal rights to vote, and second one, that is equal share in the property of her parents, and after that we have studied about declaring dowry as illegal, and last one, that is women's educations. Okay beta, so here's your today's topic, women's movement. After government's effort, now women come forward for their movement, for their rights. Okay, and for that they started campaigns against domestic violence, and also about harassment, dowry, deaths, etc. And they came on to the streets and also started to approach towards court, and also they meet or they put pressure on newspaper, media, magazines, so many things. Okay, so let's start women's movement. Okay, our today's topic is women's movement. Yes, all that was done for the upliftment and betterment of women would not have been possible if women themselves had not started movements for their upliftment. Means in this इसमें क्या है कि सारी चीज़ें जो पहले अभी आपने पढ़ा, ये सब चीज़ें जो हो चुकी हैं, किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। ये सब सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जब तक वुमेन अपनी भलाई के लिए आगे बढ़ कर के नहीं आएंगी, तब तक समाज में सुधार नहीं होने वाला है। ठीक, उनको खुद अपने लिए मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, द एबव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द betterment of women was mostly the result of different movements started by various women organizations, and the steps which were taken by government was not possible if women themselves not come forward forming women organization। अगर women अपना मूवमेंट नहीं स्टार्ट करती, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके आगे नहीं आती, तो गवर्नमेंट भी इन सब सारे स्टेप्स पर कोई भी स्टेप्स नहीं उठा पाती। They started campaigns against domestic violence, and after that they started campaigns first against domestic violence and sexual harassment, dowry, deaths, etc., which forced the government to pass law against all such discriminations against women, and they pressurized on the government to put ban or to pass laws against all this what is going in the society, or the discrimination against the women. Women's groups took various steps to show their resentment against all injustice being practiced against them, and women also took so many steps in this field to show why they have taken such type of steps, to show their means अपनी नाराज़गी को शो करना चाहती थी, अपनी गुस्से को शो करना चाहती थी अगेंस्ट जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा था, उसके प्रति अपना जो नाराज़गी प्रकट करना चाह रहे थी। ओके,
they came on to the streets, and lastly they came on to the streets, फिर लास्ट में वे लोग सड़कों पर आ गईं. Again approach the court, फिर बात नहीं बनी तो वो कोर्ट तक भी पहुंच गईं. Put pressure on the different newspapers and television channels to take up their case in the right earnest. फिर लास्ट में ये लोग सबके पास सबके ऊपर प्रेशर बनाने लगे. पहले तो ये लोग डिफरेंट न्यूज़पेपर के ऊपर, फिर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, और फिर उन्होंने लास्ट में दे प्रेशराइज्ड टू टेक अप देयर केसेस इन अ राइट ऑनेस्ट. बाय डूइंग ऑल दिस दे रेज्ड पब्लिक अवेयरनेस. ये सब सारी चीज़ें करके वे लोग क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या सामने लाना चाह रहे थे, या पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ऑल द इश्यूज फ्रॉम विच दे वेर सफरिंग फॉर लॉन्ग. पब्लिक को अवेयर करना चाह रहे थे, जागरूक करना चाह रहे थे, वो दिखाना चाह रहे थे. यही सब चीज़ें हैं जो कि हम उमन इतने समय से उसको सफ़र करते हुए आ रहे हैं. Ultimately, many people, social organization and political leaders took up their cause, which forced the government to pass different laws for their upliftment and betterment. और लास्टली गवर्नमेंट को मानना पड़ा और इसके लिए कई सारे लॉज भी पास करने पड़े. किसके लिए? फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ओके. However, in spite of the best efforts of the social reformers and the government, many social ills, especially the dowry system, still persist. और इतना कुछ होने के बाद, इतना एफर्ट डालने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से प्लस सोशल रिफॉर्मर्स की तरफ से बहुत एफर्ट डाला गया, फिर भी आज भी हमारे समाज में एक दो जो सोशल इविल्स है अभी तक है. वो क्या है? दैट इज़ स्पेशली हम कह सकते हैं डाउरी सिस्टम, ठीक है, जो कि अभी तक बना हुआ है इन द सोसाइटी. कहाँ बना हुआ है? परसिस्ट इन द सोसाइटी. मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्रूव दिस इविल. और इस इविल को रिमूव करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है. द फॉलोइंग मेजर्स कैन एंड द डाउरी सिस्टम प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी. कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसके जरिए हमारे समाज से डाउरी सिस्टम हमेशा के लिए हट सकता है. क्या रीजन्स हैं? पढ़ा जाए. Girls first, girls should be made economically independent. Right to work should be guaranteed to women so that they are not a burden on their parents. पहला क्या है? इसीलिए गर्ल्स के एजुकेशन पर बहुत बल दिया जा रहा है. इसीलिए कहा गया है कि गर्ल्स को एडुकेट करिए, उनको एजुकेशन दीजिए, प्लस उनको इकोनॉमिकली मजबूत कीजिए, और उनके जो वुमेन के जो राइट वर्क शुड बी गारंटेड, कि वुमेन को भी वर्क करने का अधिकार है, ताकि वो अपने आप को समाज पर, अपने पेरेंट्स पर बर्डन ना बनने दें, यानी बर्डन अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने. सेकेंड, girls should be well educated. Only educated girls can save themselves from falling a prey to greedy in-laws. क्या है? गर्ल्स को वेल एडुकेटेड करना है, ताकि जो केवल इस जो अपने ओनली एडुकेटेड गर्ल्स कैन सेव देम, जो पढ़ी लिखी हैं, जो वेल एडुकेटेड हैं, वही गर्ल्स अपने आप को बचा सकती हैं. किससे बचा सकती हैं? अपने ग्रीडी इन लॉज से, यानी अपने लालची यू कैन सास ससुर से. ठीक. थर्ड, द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज मोर स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज हु आर स्टिल फाउंडिंग डिमांडिंग डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन. और ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट को इस समय बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना चाहिए
जब कोई लड़के वाले अपने लड़के की शादी के लिए डाउरी की डिमांड करते हैं। ठीक, all the marriages should be registered and undertaking from the parents of the bridegroom should be taken that they had not taken anything in dowry। और सारी जो शादियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए और एक दूसरे की सहमति होनी चाहिए, ना ही हम डाउरी लेंगे और ना ही हम डाउरी देंगे। Programs against dowry should be relayed on mass media like radio, television। और डाउरी के अगेंस्ट में कई सारे प्रोग्राम्स भी टेलीकास्ट करने चाहिए, जैसे कि आपके रेडियो पर हो गया, टेलीविज़न पर हो गया, न्यूज़पेपर्स में हो गया, मैगजीन्स में हो गया। लास्ट, बॉयज शुड बी एजुकेटेड सो दैट एज फ्यूचर सिटीजन्स दे नॉट सपोर्ट दिस सिस्टम। और बॉयज़ को भी वेल एजुकेटेड करना है ताकि वो फ्यूचर में जा कर के इस सिस्टम को सपोर्ट ना करें। मतलब जो बॉयज़ अब पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है ताकि वो बाद में आगे चल कर के अपने लिए किसी डाउरी की डिमांड ना करें और अपने पेरेंट्स को भी करने से मना करें। ओके बेटा, सो टुडे ओनली दिस मच। In next video we will start last topic of this chapter। Okay, now here's your homework, learn exercise A of chapter 27। okay beta, thank you।